متاثرین کی بحالی کے عمل کی خود نگرانی کر رہا ہوں. انتہائی شفافیت اور شبانہ روز محنت کے ساتھ وسائل متاثرین تک پہنچائیں گے. آخری متاثرہ شخص کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. سیاحوں کی باحفاظت منتقلی میں مسلح افواج کے مشکور ہیں. امید ہے کہ سیاحوں کے انخلاء کا عمل جلد مکمل ہو جائے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقے کانجو میں متاثرین سے گفتگو. خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے 10 ارب روپے کی گرانٹ کا بھی اعلان. آپ فکر نہ کریں، فوراً انتظام کریں. انشاءاللہ بیٹا، انشاءاللہ فکر نہ کرو، انشاءاللہ کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ پریشان نہ ہو. آپ کی باتوں کی بجائے عملی کام پر یقین رکھتے ہیں. یہ سیاست کا نہیں، خدمت کا وقت ہے. حکومت مصیبت کی اس گھڑی میں متاثرین سیلاب کے ساتھ کھڑی ہے. تمام دستیاب وسائل بروئے کار لاتے ہوئے متاثرین کی بحالی اور دوبارہ آباد کاری ہماری اولین ترجیح ہے. پھنسے ہوئے سیاحوں کا بحفاظت گھر پہنچنا ضروری ہے. وزیر اعظم کی کالام میں سیلاب متاثرین کو یقین دہانی. وزیر اعظم کا لوئر کوہستان کے علاقے پٹن کا دورہ، نقصانات اور امدادی کارروائیوں پر بریفنگ لی. مصیبت کی گھڑی میں متاثرین کے ساتھ ہیں. علاقے میں پھنسے سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر رہے ہیں. اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی حقدار امداد سے محروم نہ رہے. وزیر اعظم کی متاثرین سے گفتگو. صدر ڈاکٹر عارف علوی کی عالمی اداروں اور قوم سے سیلاب متاثرین کی مدد کی اپیل. پاکستانی قوم نے ہمیشہ مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی داد رسی کی ہے. ہم سب مل کر اس چیلنج پر قابو پائیں گے. نوشہرہ کے دورے کے دوران امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لینے پر مسلح افواج، صوبائی حکومتوں اور انتظامیہ کی کاوشوں کو خراج تحسین. مسلم لیگ نون کی حکومت آپ کی تکلیفیں دور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ. اور میں آپ سب سے وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی ہم سے جو بھی ہو سکا ہم کریں گے اور دکھ کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. مشکل کی اس گھڑی میں مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ کھڑی ہے. متاثرین کی بحالی اور آبادکاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقے فاضل پور میں سیلاب متاثرین سے گفتگو. مختلف علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. متاثرہ خواتین نے مریم نواز کو اپنے مسائل سے بھی آگاہ کیا. ملک کی تاریخ کے بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے این ڈی ایم اے کے تازہ اعداد و شمار. گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 36 افراد جاں بحق، 1941 زخمی. اموات کی مجموعی تعداد 1162 ہو گئی. 243 پل تباہ. 5063 کلومیٹر شاہراہوں کو نقصان پہنچا. 10,51,000 سے زائد گھر متاثر. 7 لاکھ سے زائد مویشی سیلاب میں بہہ گئے. ملک کے 72 متاثرہ اضلاع میں سول ادارے اور افواج پاکستان کی امدادی کارروائیاں جاری. ایڈیشنل سیشن جج کو دھمکانے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ کا 7 روز میں عمران خان کو دوبارہ جواب جمع کرانے کا حکم. منیر اے ملک، مختوم علی خان اور پاکستان بار کونسل عدالتی معاون مقرر. عمران خان توہین عدالت کیس کی سماعت 8 ستمبر تک ملتوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو نیوز شو 6 کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں رضوان رونق اور نازیہ خان. ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے 10 ارب روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا ہے. دوست ممالک کی طرف سے امداد پر بے حد مشکور ہیں. آخری متاثرہ شخص کی مکمل بحالی تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سیاحوں اور سیلاب متاثرین سے ملاقات. امداد اور بحالی کے کاموں پر بریفنگ کی تفصیل بتا رہے ہیں آغا مسعود خالد. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خود جا کر امداد اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لے رہے ہیں.
सैलाब मुतासरीन की दिलजोई और उन्हें पैगाम दे रहे हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में वो तन्हा नहीं, हुकूमत उनके साथ खड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाके कांजू में वजीर आजम ने मुतासरीन से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हर मुतासरा शख्स की बहाली तक हुकूमत चैन से नहीं बैठेगी। अब इंशाल्लाह लाहौर जाएंगे इंशाल्लाह। तो कलाम गए मुझे, कलाम गए मुझे, आप भी कलाम गए मुझे, कलाम तो तले ठीक ठाक है। क्या नाम बेटा आपका? शाह। कहाँ से हैं? खरीद से है ना? ठीक ठाक है सब, खाना पीना ठीक है? बोतल पकड़ी भी आप? वजीर आजम ने कांजू में रेस्क्यू किए गए सयाहों से भी मुलाकात की और उन्हें बताया कि सयाहों की अपने घरों तक महफूज वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। जर्मनी से आए, आप भी जर्मनी से आए? यहाँ पर देखने आए थे? पाकिस्तान aus Deutschland? Ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Pakistan, aber wohne in Deutschland. Ja, wohnen in Deutschland. Erste Mal Pakistan. Ja, das stimmt. Zweite Deutschland. Ja, ja. Richtig oder nicht? Das stimmt, ja. Das stimmt. Sehr gut. Und sind Sie gut hier? Ja, wir sind gut hier Essen angekommen. gut? Ja, es war sehr gut. Schlafen gut? Ja, Haben Sie Wasser? alles, was wir brauchen. Keine Problem? Nein. इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क भर में सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई, जानवर सैलाब में बह गए, घरों और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में बरादर और दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की भरपूर मदद कर रहे हैं। एक बड़ा कठिन मरहला है, हमें बाहर के ममालिक से, दोस्त ममालिक हैं, बरादर ममालिक हैं, वो भी हमें मदद फराहम कर रहे हैं। NDMA सूबों की PDMA से मिलकर इस सामान की तकसीम कर रहा है। शफाफ तरीके से ये पैसा यहाँ लगेगा। मैं खुद इसकी ज़ाती तौर पर भी निगरानी करूंगा इंशाल्लाह। वजीर आजम को कांजू में सैलाब से होने वाले नुकसानात, रेस्क्यू और रिलीफ के कामों पर दी जाने वाली ब्रीफिंग में बताया गया कि इलाके में सैलाब से 22 अफराद जाँ बहक हुए, होटलों और घरों को नुकसान पहुंचा। सैलाबी पानी के बाइस मट्टा, बहरेन, सैदो शरीफ और कालाम में पुल और शाहराहें मुतासिर हुई। भारी मशीनरी के जरिए शाहराहों की बहाली का काम जारी है। वजीर आजम ने FWO और NHA को हिदायत की कि शाहराहों की बहाली तरजीह बुनियादों पर की जाए। वजीर आजम ने हिदायत की कि सयाहों की अपने घरों तक महफूज वापसी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन सैलाब के साथ खड़ी है। तमाम दस्तियाब वसाइल बुरुए कार लाते हुए मुतासरीन की बहाली और दोबारा आबादकारी हमारी अव्वलीन तरजीह है। सयाहों को जल्द अज जल्द कालाम से निकालने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कालाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू की तफसील हमें बताएंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कालाम पहुँचते ही सैलाब मुतासरीन से मिले और उनसे उनके मसाइल दरियाफ्त किए। बेटा कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। 5 दिन। छोटे छोटे बच्चे, ये देखो ये बच्चे। चलो आप फिक्र न करें, फौरन इंतजाम। हमारा ये वालदा भी बीमार है, इधर बेटा ही इधर। हमें निकाल दे यहाँ से, आपकी मेहरबानी। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह फिक्र न करो, इंशाल्लाह करते हैं इंशाल्लाह। आप परेशान न हो। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि सयाहों को जल्द अज जल्द यहाँ से निकाला जाएगा। वज़ीर आज़म ने कालाम में फंसे सयाहों से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कालाम में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हंगामी ऑपरेशन जारी है। आप कहाँ से आए? कराची से। अच्छा, बीबी फिक्र न करें, इंशाल्लाह आपको एवैक्यूएट भी हम करेंगे। और मैं इसलिए आया हूँ, आप कुछ एवैक्यूएट हो गए हैं, आपको इंशाल्लाह यहाँ से खैरियत से निकालेंगे इंशाल्लाह। पूरी चले गए, हमारा क्या होगा? आप फिक्र न करें बीवी, इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सैलाब से बहुत से इलाकों का ज़मीनी राब्ता टूट चुका है। मकामी अफराद ने फंसे हुए सयाहों का बेहतरीन अंदाज में ख्याल रखा, जिन पर उनके मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि फिल फॉर सड़कों की बहाली के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। अभी जाते ही FWO के जो हमारे हेड हैं, उनको मैं फौरी तौर पर उनको ये कहूँगा, इंशाल्लाह गुजारिश करूँगा फिल फॉर रोड रिपेयर के काम शुरू कर दें। मैं इसकी ज़ाती निगरानी करूँगा। ये कहाँ की पॉलिसी है कि आप दरिया में आप करोड़ रुपए लगा दें और पता हो कि कभी सैलाब आया तो वो उसको बहा ले जाएगा। और यही हुआ। अगर दरिया से थोड़ा हट के
पीछे हट के अच्छी जगह पर वो होटल बनता तो बाकी तो अल्लाह को इल्म है, लेकिन शायद वो ना दराबुर्द ना होता। तो ये भी हमारी पॉलिसियों का नतीजा है। मैं किसी के ऊपर इस वक्त तनकीद नहीं कर रहा, क्योंकि इस वक्त ये वक्त है हमें इकट्ठे होकर काम करने का। सियासत का वक्त आएगा वो करेंगे, इस वक्त सियासत नहीं, इस वक्त खिदमत वो इबादत है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि बातों की बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। वफाकी हुकूमत अपने तमाम मौजूदा वसाइल सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए इस्तेमाल करेगी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुतल्लिका हुकाम की जानिब से मुतासरा इलाकों की बहाली के हवाले से किए जाने वाले इक़दामात से मुतालिक ब्रीफ किया गया। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वो लोअर कोहिस्तान के सैलाब से मुतासर इलाके पटन के दौरे के मौके पर मुतासरीन से गुफ्तगू कर रहे थे। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद नवीद अजहर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन सैलाब के साथ खड़ी है और तमाम दस्तयाब वसाइल बुरोकार लाते हुए मुतासरीन की बहाली और दोबारा आबादकारी हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा कि मुल्क के बेशतर हिस्सों में सैलाब की तबाहकारियों से सड़कों, खड़ी फसलों, पुलों और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिनका तखमीना लगाने के लिए फौरी हदायत जारी कर दी गई हैं। ये यकीन दिलाने आए कि इस मुसीबत के वक्त हम आपके साथ खड़े हैं। सूबाई हुकूमत NDM में हम आपकी खदमत में मौजूद रहेंगे। खुराक, टेंट, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वहाँ से खेमे आ रहे हैं, अद्वियात आ रही हैं, खाने पीने की चीज़ें आ रही हैं, बच्चों के लिए भी वहाँ से सामान आ रहा है। हम और आज मैं 10 अरब रुपए का मैंने ऐलान किया है KP के लिए। जब तक आखिरी घर जो है, आखिरी फर्द अपने घरों में आबाद नहीं हो जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इससे पहले पटन पहुंचने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को ज़िली इंतजामिया की जानिब से सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि सैलाबी सूरत हाल के बाद नशेबी इलाकों से लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाना अवलीन तरजीह थी। ब्रीफिंग में बताया गया कि NDMA और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मरबूत लायामल के साथ मुतासरीन तक खैमे और खुराक की तरसील यकीनी बना रही है, जबकि NHA, FWO और आर्मी इंजीनियरिंग कोर इलाके में सड़कों की बहाली के लिए मसरूफ़ अमल हैं। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर मौजूद हैं और जो अभी हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं उसमें भी हमने देखा कि जो सयाह वहाँ से रेस्क्यू किए गए हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, उनके मसाइल जाने और जल्द अज जल्द हिदायत की गई है कि उनको उनके मुकर्ररा मुकाम तक जो है वो पहुँचाया जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है नाज़िया। कोशिश बहरहाल वज़ीर आज़म की तरफ से और उनकी तमाम हुकूमती टीम की तरफ से यही की जा रही है कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू और रिलीफ का काम और फिर बहाली का काम जो ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको शुरू किया जाए। नाज़रीन, सवात आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सवात और कालाम के दौरे पर भी थे, पटन भी पहुँचे। सवात और कालाम में रेस्क्यू रिलीफ की एक्टिविटीज़ किस नहज पर जारी हैं, किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है तमाम चीज़ों को, इन पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक बट ने सवात से जो है वो हमें ज्वाइन किया है, इनसे इस हवाले से तफसीलात मालूम करते हैं। हसन तारिक बट, आप सवात में मौजूद हैं, ज़रा शेयर कीजिएगा। रेस्क्यू है, अभी तो चूँकि रेस्क्यू का अमल भी जो है वो जारी है, रिलीफ दिया जा रहा है, लोगों को पहुंचाया जा रहा है, लिफ्ट किया जा रहा है लोगों को, उसके बाद जो है वो बहाली का काम शुरू होगा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा कि किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। जी जी रिजवान भाई, मैं इस वक्त जो कांजू सवात के मुकाम पर जो ब्रिज है सवात रिवर के ऊपर, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, इनफैक्ट उसके करीब हूँ और नेक्स्ट टू द रिवर बेड हूँ। और मेरे पीछे वो एक स्टार्क रिमाइंडर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वापडा का वो बड़ा पोल है जो हमने देखा है कि ये पानी के बहाव के साथ बहता हुआ यहाँ पर अब रिवर बेड के ऊपर आ चुका हुआ है। एंड दिस इज़ दी ग्लेयरिंग रियलिटी जो ये हालिया बारिशें और 30 साल का रिकॉर्ड टूटा और ये जो हमने देखा कि सैलाब ने तबाही मचाई हमारे सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जनूबी पंजाब में, और इस वक्त जो है वो रिलीफ एक्टिविटीज़ चल रही हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर कालाम का विज़िट किया, इसके बाद वो यहाँ पर जो कांजू है इधर गए, यहाँ से वो पटन के गए, यहाँ पर उनको जो रिलीफ एक्टिविटीज़ जारी हैं उन हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई। उनको बताया गया कि तकरीबन 1200-1300 जो सयाह हैं उनको
کو جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. ان کو جو ہے وہ طبی امداد بھی دی گئی ہے, کھانے پینے کی اشیاء دی گئی ہیں, جو ہے وہ میڈیکل فیسلٹیز دی گئی ہیں, ان کو عارضی رہائش دی گئی ہے. اور یہاں پر جو کیمپ ہے کانجو کے اندر, یہاں پر ان کو ٹھہرایا گیا ہے. ایک بڑا جو ہے وہ زبردست جو ہے وہ وزیر اعظم کا بڑا ہارٹ وارمنگ سا جو ہے وہ انٹریکشن بھی ہوا. وزیر اعظم نے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت کی, گفتگو کی, ان کو یقین دہانی جو ہے وہ دلائی کہ جو حکومت ہے وہ تمام وسائل جو ہے وہ تمام انرجیز جو ہے وہ اپنی ان کی لائفز کو دوبارہ جو ہے بحال کرنے میں, ریسٹور کرنے میں جو ہے وہ صرف کرے گی. اور ریلیف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں, اور جس طریقے سے اطلاعات مل رہی ہیں سیاحوں کی, ان کو نکالنے کا عمل بھی جاری ہے. جی اچھا حسن, ایک بات آپ نے کہی کہ عمل جاری ہے, کیا سارے سیاح وہاں سے نکالے جا چکے ہیں یا ابھی بھی کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ گرد و نواح کے علاقے میں سیاح جو ہے وہ موجود ہیں؟ دوسرا یہ بھی فرما دیجیے گا, ابھی آپ نے ریلیف کی بات کی کہ وہ آپریشن جاری ہے ریسکیو اینڈ ریلیف کا, اس دوران کوئی ہرڈلز, کوئی مشکلات بھی انتظامیہ کو درپیش ہے تو وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی میڈم, جو میجر چنک ہے وہ تو سارے کا سارا جو سیاح ہیں ان کو ایویکویٹ کر دیا گیا ہے. اب بہت ہی جو ہیں وہ لمیٹڈ جو ہیں وہ اس حوالے سے انفارمیشن آ رہی ہیں, بہت کم سیاح ایسے رہ گئے ہیں, اور امید ہے کہ آج کے دن یعنی آج کے دن کے اینڈ تک جو ایویکویشن کا عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں وہ بحالی کا فیز ہے, اور آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, مشکلات کی آپ بات کر رہی ہیں میڈم. بہت میسو اسکیل کے اوپر ہمیں جو ہے پہلے اس سیلاب کو سمجھنا ہوگا کہ جو ڈسٹرکشن اس نے جو کی ہے, ٹھیک ہے نا, 1,30,00,000 لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں, سڑکیں تباہ ہوئی ہیں, پل, لوگوں کی فصلیں, لائیولی ہوڈ جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں. تقریباً 1 ملین تقریباً 10 لاکھ افراد ایسے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں, تقریباً 1100 افراد ایسے ہیں جو جاں بحق ہوئے ہیں. تو یہ جو اسکیل ہے ہماری معیشت کی اگر ہم بات کریں, $10 ارب کا جو ہے وہ صرف معیشت کا نقصان ہے. تو جب سڑکیں تباہ ہوتی ہیں, پل تباہ ہوتے ہیں, تو یہی ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹس کو بھی جو ہے وہ ایک طرح کا دھچکا ملتا ہے. وہاں پر جو ہے وہ ریسکیو اینڈ ریلیف ایکٹیویٹیز کے پہنچنے میں ان کی رسائی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو اس لیے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں جو ہے وہ وفاق جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ مل کر ایک میسو آپریشن کر رہا ہے, اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپریشیٹ کرنا ہوگا کہ پوری قوم یکجا ہوئی ہے اس پوائنٹ کے اوپر. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بین الاقوامی برادری بھی جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے اس کام میں آگے آ رہی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی آئے دن ان کے جہاز آ رہے ہیں. ترکی سے جیسے ایک ٹرین بھی باقاعدہ چل پڑی ہے. تو یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جس اس ریسکیو اینڈ ریلیف ایفرٹس جو ہے وہ پورے عزم کے ساتھ جاری ہے. جی فرما دیجیے گا کہ اس وقت موسم کی وہاں کیا صورتحال ہے؟ بارشوں کا سلسلہ مکمل طور پہ تھم چکا ہے یا مزید بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ بارشیں ہو سکتی ہیں؟ جی بالکل, اس وقت جو ویدر ہے فار ٹوڈے اینڈ فار دی کمنگ نیکسٹ فیو ڈیز وہ ایبسولوٹلی کلیئر ہے. مزید نیکسٹ ویک کا بھی نہیں کہا جا سکتا, مگر بٹ فار دا ٹائم بینگ جو ویدر ہے وہ یہاں پر بالکل کلیئر ہے. اور اسی وجہ سے جو ریسکیو اینڈ ریلیف کی جو ایفرٹس ہیں ان کو مدد بھی مل رہی ہے, کیونکہ سورٹیز ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً جو ہماری پاک فوج ہے اس نے تقریباً 80 کے قریب جو ہیں 80+ بلکہ جو ہیں وہ سورٹیز بھی کی ہیں, سکسیزفل سورٹیز کی ہیں, جن میں 1300 جو ہیں سیاح ان کو ایویکویٹ کیا گیا. جی بہت شکریہ حسن طارق بٹ, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. سوات سے باقاعدہ تفصیلی طور پر بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ریسکیو اور ریلیف آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ خاص طور پر جہاں پر سیاح پھنسے ہوئے ہیں, جو لوگ وہاں پر مقامی ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, گھر جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں. دریائے سوات نے جو ہے وہ بہت زیادہ تباہی مچائی ہے, جو ہم اپنی سوشل میڈیا پر بھی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن بہرحال اگر عزم جوان ہو, حوصلہ جوان ہو, اور کوشش کی جا رہی ہو حکمران کی طرف سے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس معاملے سے نمٹا جائے اور ان کے درمیان میں موجود رہا جائے, ان کی دلجوئی کی جائے, ان کی اشک شوئی کی جائے. جیسے کہ ابھی ہم دیکھ بھی رہے تھے کہ باقاعدہ نازیہ سیاح بھی ان سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں جلدی سے یہاں سے نکال دیں بس. تو وہ ڈیفینیٹلی نجات دہندہ بن کر سامنے آتے ہیں حکمران, کیونکہ تمام ریاستی ریسورسز جو ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں. تو کوشش اگر وہ کریں تو بہت جلد بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے, جو کہ کی جا رہی ہے کوشش. بالکل. اور رضوان, جس طرح سے وزیر اعظم نے بھی فرمایا کہ یہ وقت جو ہے یہ سیاست کا نہیں ہے, سیاست کے لیے جو ہے بڑا وقت پڑا ہے. یہ اس وقت صرف اور صرف انسانیت کی خدمت درکار ہے, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ماحولیاتی تبدیلی کی زد میں ہے. اور وزیر اعظم نے بھی آج یہ فرمایا کہ یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے, تو ہمیں ابھی سے ہی دیکھنا ہے کہ اپنی پالیسیز کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, کس طرح سے آنے والے وقت میں اس مشکل سے بچانا ہے پاکستان کو. اور رضوان, یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان کی جو جیوگرافک لوکیشن ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان اس کا نہیں پارٹیسپیٹ کر رہا ان
उन चीज़ों में जिसकी वजह से वो इफेक्टिव में आया हुआ है, लेकिन अगर इर्द गिर्द के ममालिक भी इससे मुतासर हो रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ेगा। तो ये बड़ी वल्नरेबल पोजीशन है हमारे लिए। इसमें हमें यकीनी तौर पे बड़ी मुनज़्ज़म सोच की ज़रूरत है, बर वक्त कार्रवाई की ज़रूरत है, और ये भी ज़रूरत है कि जो आबी गुज़रगाहें हैं रिजवान, वहाँ पर कम से कम हम तामीरात को ना होने दें, ताकि खुदा न खास्ता इस सूरत हाल में पानी के बहाव को आप रोक नहीं सकते। 100 साल बाद भी कहा जाता है कि पानी जो है अपना रास्ता बना लेता है, ताकि जानी नुकसान कम से कम ना हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और कोशिश जो है वो कामयाब भी होगी। इसी तरह से तमाम इदारे, तमाम एजेंसीज़ मिलकर काम कर रही हैं। कोऑर्डिनेशन ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जैसे कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मकामी और सूबाई इंतज़ामिया जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी इस वक्त बिल्कुल ये नहीं देखना चाहिए, जैसे वज़ीर आज़म भी बार बार कह रहे हैं कि तमाम सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए सिर्फ इनकी मदद की जाए। नाज़रीन, आपको बताएं कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ चोटी ज़ेरी डेरा गाजी खान में सलाह मुतासरीन से उन्होंने मुलाकात की है, मीडिया से गुफ्तगू हुई है। कोशिश की गई है मरियम नवाज़ की तरफ से कि सलाह मुतासरीन जो हैं उनके दुख दर्द को बांटा जा सके, राशन तकसीम किया। नाज़रीन, जो तफसील है वो आपसे शेयर करते हैं। तो मेरी ये जो बहनें आई हुई हैं, ये इनमें से कोई मुझे बताए, आप बेटा ब्लू जो आपने चादर ली थी, आप मुझे बताओ आप कहाँ से आए हो? आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? छोटी देवी से। तो आपका क्या नुकसान है? छत गिर गई कि कौन कौन है घर में? अच्छा, नाज़रीन, मरियम नवाज़ नायब सदर मुस्लिम लीग नून चोटी ज़ेरी, जो कि डेरा गाजी खान की का ट्राइबल इलाका अगर कहा जाए तो वो कोई गलत नहीं है, ट्राइबल एरिया की बेल्ट है पूरी। चोटी ज़ेरी नहायत पसमानदा इलाका है, वहाँ पर वो पहुँची हैं। सलाह मुतासरीन से मुलाकात, ये आप देख सकते हैं कि उनके दरमियान जो है वो बैठी हैं जाकर, और कोशिश उनकी तरफ से की गई है कि उनकी अश्कशोई की जाए, उनको हौसला दिया जाए, उनके मसाइल सुने जाएँ। बाकायदा बुला कर मरियम नवाज़ ने जो है वो उनके मसाइल भी सुने हैं। ख़ास तौर पर नाज़िया आप बेहतर समझ सकती हैं कि ख़ातून को अपने दरमियान पाकर ख़वातीन जो इफ़ेक्टीज़ हैं वो बेहतर तरीके से अपना जो है वो मुद्दा बयान कर सकती हैं, अपने मसाइल बयान कर सकती हैं। जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि ख़वातीन के मसाइल जो हैं वो तो बता भी नहीं पा रही किसी को। बिल्कुल ऐसे ही है रिजवान, सिर्फ मर्द, बच्चे और बुजुर्ग ही से मुतासिर नहीं हुए, एक बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन भी हैं। और आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि वो उस तरह से मीडिया पर आकर बात नहीं कर सकती, अपने मसाइल बयान नहीं कर सकती। हमारे कुछ मौशरती इक़्तिदार भी हैं, इक़्तिदार भी हैं, उनको भी मलूज़ खातिर रखा जाता है, उसकी वजह से इतना सामने नहीं आ सकती। लेकिन एक मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा खातून उनके दरमियान मौजूद हैं, तो यकीनी तौर पे हम जो एक कंफर्ट लेवल है वो भी हम देख रहे हैं। और एक एक शख्स को पास बुलाना, एक एक खातून को पास बुलाना और उनसे इनफरादी तौर पे जानने की कोशिश करना कि उनका कितना नुकसान हुआ है, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गए, उनका कुछ नहीं रहा, ये दस्ते शफकत और ये जो हमदर्दी के जो अल्फाज हैं ये उनमें हौसला लेकर आते हैं, बर्दाश्त लेकर आते हैं, ताकि उनको पता है कि उनके पास कुछ चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन उनका ये एतमाद भी आता है कि हाकिम वक्त जो हैं, जो हुकूमत में हैं, वो उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं, उनके दुख को महसूस कर रहे हैं, उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं, उन ख़वातीन के साथ हैं जिनके बच्चे इस पानी में बह गए, जिनके घर का वारिस वहाँ चला गया या उनके घर का सरबराह इस पानी में बह गया। ये बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन, मरियम नवाज़ चोटी ज़ेरी में सलाह मुतासरीन से मुलाकात कर रही थी, उनके मसाइल पूछ रही थी, जो हमने आपसे शेयर भी किया, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ स्क्रीन पर बताया भी। तो मेरी ये जो बहनें आई हुई हैं, ये इनमें से कोई मुझे बताए, आप बेटा ब्लू जो आपने चादर ली थी, आप मुझे बताओ आप कहाँ से आए हो? आ जाओ आ जाओ। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? छोटी देवी से। तो आपका क्या नुकसान है? छत गिर गई कि कौन कौन है घर में?
इतनी प्यारी बच्चियां जिन्होंने मुझे वेलकम किया इतने प्यार से पीछे खड़ी हैं, मुझे नजर आ रही है, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत प्यार। और ये ख़वातीन जो मेरे सामने बैठी हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियां, आप सबको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं अवैस लगारी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ और उनके बेटे मेरे साथ बैठे हैं, उनके भाई मेरे साथ बैठे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और बड़ी अच्छा लगा मुझे स्कूल में आके, मुझे पता चला कि ये स्कूल ये बनाया है, ये चला रहे हैं, बच्चियों को अच्छी तालीम यहाँ पर मिल रही है। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि इन्होंने आफत की इस घड़ी में इस स्कूल को ज़रिया बनाया। जितनी भी ख़ानदान हैं उनमें से जितनों की भी ये मदद कर सकते हैं, सुनाए माएँ बहनें बेटियां यहाँ पर आती हैं, उनको राशन भी दिया जाता है, उनकी जो इनसे मुमकिन होती है मदद वो की जाती है, तो ये बड़ी अच्छी बात है और अल्लाह ताला इसका अजर दे उनको। और मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आज मैं यहाँ पर आई हूँ, आप सबसे मेरी मुलाकात हुई है। राजनपुर का आज ये मेरा पहला दौरा है, लेकिन और ऐसी आफत की घड़ी में ये दौरा मैंने किया। मेरे वालिद ने मुझे लंदन से फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बार बार ये ताकीद की कि लोगों के पास जाओ, उनकी ज़रूरत में, उनकी मुसीबत की घड़ी में, उनकी आफत में उनके साथ खड़े हो, उनको ये एहसास हो कि वो अकेले नहीं हैं, हम उस दुख की तकलीफ़ की घड़ी में उनके साथ हैं। तो मेरी बहनों, मेरी माँओं, मेरी बेटियों, मैं आप सबको ये यकीन दिलाने आई हूँ कि हमसे जो भी हो सका, नवाज शरीफ साहब से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं उनकी तरफ से, हम आपकी जो तकलीफ़ दूर करने में जो कुछ हमसे इंसानी तौर पे हो सका हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। आपके घरों में आपको राशन भी पहुँचाएँगे, पहुँचा रहे भी हैं। और भले पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन ये सैलाब जो है वो कभी ये देख के नहीं आता, या आफत जो है वो पार्टीज़ देख के नहीं आती। हमारे लिए पंजाब में हमारी हुकूमत हो ना हो, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत हो ना हो, किसी और सूबे में हुकूमत हो ना हो, लेकिन हम अपने जो भाई और बहनें जो इस वक्त मुसीबत में, हम उनके साथ खड़े और पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो घर सैलाब में बह गए हैं, टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। आज मैंने ख़ुद तमाम ये जो रास्ते हैं वो मैंने देखा, बल्कि महलों में जाके देखा, उजड़े हुए घर थे, बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे देख के कि दीवारें भी गिर गई, घर ही ख़त्म हो गए, कुछ घर तो बह गए, जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, आपके माल मवेशी का नुकसान हुआ। बड़ी दिल को तकलीफ़ हुई वो देख के, और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला जल्दी से आपको आबाद करे अपने घरों में वापस, जो आपकी तकलीफ़ें हैं वो दूर करे। और पूरी कोशिश भी हमारी होगी कि आपके जो घर टूट गए हैं वो हम बनवा के दें आपको इंशाल्लाह, आपके घरों में राशन पहुंचाएं, आपको दवाइयाँ टाइम पे मिलें। मैंने आज कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको कोई स्किन की प्रॉब्लम हो गई है, जल्द की तकलीफ़ हो गई है, ऐसे हालात की वजह से बीमारियाँ वबाएँ निकल आई हैं, तो उनको उनका इलाज हो, उनको टाइम पे दवाई मिले, उनके घर पे दवाइयाँ पहुँचाई जाएँ, उनको मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उनके घर में उनको पहुँचाई जाएँ, उनके महल्लों में उनको पहुँचाई जाएँ। तो ये सारा कुछ मैंने आज नोट भी किया है, जो कुछ मैं कर सकी मैं अपने साथ लाई, बाकी मैं सब कुछ नोट करके शहबाज शरीफ साहब को जाके ये इत्तला करूँगी कि यहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो ज़रूर हम मुहैया करने की पूरी कोशिश करेंगे। जनाज़ नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज़ चोटी ज़ेरी में मौजूद और बात कर रही थी, कोशिश कर रही थी कि किसी तरह भी उनके दरमियान मौजूद रहकर उनके दुख दर्द को कम किया जा सके, उनका हौसला बढ़ाया जा सके। अच्छा नाज़िया, जो चोटी ज़ेरी का इलाका जो है ये यहाँ इस्लामाबाद में रहने वालों को शायद इतना इल्म ना हो, ये बहुत ही ज़्यादा पसमानदा इलाका है। यहाँ साबिक सदर फ़ारूक लगारी साहब यहाँ से MNA बनते रहे, उसके बाद अवैस लगारी और जमाल लगारी जिनका इन्होंने जिक्र भी किया, वो इनके साथ मौजूद। यहाँ पर कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है, लगारी ख़ानदान की तरफ से, कि फिलंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज़ जो है एजुकेशन के हवाले से काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी अगर ये कहा जाए ये बहुत पसमानदा इलाका है। तो यहाँ पर मरीम नवाज़ का मौजूद होना, उनके कैंप्स में जाना, उनमें राशन की तकसीम और उसके बाद उनको हौसला देना, ये बहुत बड़ी बात है। यानी ये शायद वो पूरा काम ना किया जा सके, लेकिन बहरहाल वो अपना हिस्सा बहुत बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से डाला गया है। बिल्कुल।
इस वक्त कुछ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। उन्होंने भी आलमी इदारों से और कौम से भी अपील की है कि वो मुतासरीन सैलाब की भरपूर मदद करें। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम ने हमेशा मुश्किल वक्त में अपने भाइयों की दाद रसी की है। हम सब मिलकर इस चैलेंज पर काबू पाएंगे। सैलाब से मुतासर इलाके के दौरे पर नौशहरा में गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने पर मुसल्लह अफवाज, सूबाई हुकूमतों और इंतजामिया की काविशों को सराहा। आप सब के साथ अपील है कि दिल खोल कर हथियार दें, जो सामान दे सकते हैं वो सामान दें, और दुआओं में भी याद रखें कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम करे। आर्मी ने बेइंतहा काम किया, मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूँ, और हुकूमत के सारे लोग हर सूबे के अंदर इस रिलीफ पर लगे हुए हैं। नौशहरा में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को मर्दान पुल पर हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। सदर मुमलिकत को बताया गया कि मौसर हिकमत अमली के बायस नौशहरा को सैलाब की तबाही से बचा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि नौशहरा के इलाके में सैलाब से तकरीबन 1,50,000 अफराद मुतासर हुए हैं। मुतासरीन की इमदाद के लिए 100 इमदादी कैंप लगाए गए। सदर मुमलिकत को बताया गया है कि सैलाब की बरवक्त इतला की वजह से आबादी को बरवक्त महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हिफाजती बंद ने अपनी सलाहियत से ज़्यादा सैलाबी रेला बर्दाश्त किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि फ़ौज, सिविल इदारों और फलाही तंजीमों ने मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए काबिल तहसीन काम किया है। और दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा 20 से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों और आलमी इदारों के नुमाइंदों ने सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा किया। सफारतकारों और आलमी इदारों के नुमाइंदों को सखर एयरपोर्ट पर सैलाब से होने वाली तबाही के हवाले से NDMA की जानिब से ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर ख़ारजा आलमी नुमाइंदों को पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से उन्होंने उनको आगाह किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ के मरहले में है। अगला मरहला मुतासरीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी बरादरी की मुआवनत दरकार है। गैर मुल्की सिफारतकारों का ये कहना था कि मुतासरा इलाकों में बड़े पैमानों पर होने वाले नुकसानात के देखे हैं। इस सैलाब से मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों का अंदाजा किया जा सकता है। नाज़रीन, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। मुतासरीन सैलाब से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ खड़ी है। मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। मैं आप सबसे ये वादा करने आई हूं कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब के हुक्म के मुताबिक, शहबाज शरीफ साहब के वादे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आपकी तकलीफें दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। और मैं आप सबसे वादा करती हूँ इंशाअल्लाह ताला हमसे जो भी हो सका हम करेंगे और दुख की इस घड़ी में आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाज़रीन, इस मौके पर मुतासरा ख़वातीन ने मरियम नवाज़ को अपने मसाइल से भी आगाह किया। मरियम नवाज़ सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें हर मुमकिन ताउन का उन्होंने यकीन भी दिलाया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली तौहीन अदालत केस के हवाले से, जिसमें शो कॉज नोटिस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के जमा कराए गए जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए 7 रोज़ में दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है। अदालत आलिया ने मुनीर ए मलिक, मखदूम अली खान और सदर पाकिस्तान बार काउंसिल को अदालती मुआविन भी मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तौहीन अदालत के मुकदमे की समाअत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अदालत आलिया के हुक्म पर अदालत के रूबरू पेश हुए। इमरान खान के वकील हामिद खान रोस्टम पर आए तो चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह का कहना था कि आपके मौकिल की जानिब से जमा करवाए गए जवाब से हमें दुख हुआ है। क्या ये बेहतर नहीं होता कि हाई कोर्ट में आने से पहले आप एडिशनल सेशन जज के पास चले जाते? चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस तरह गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता, कहे गए अल्फाज भी कभी वापस नहीं होते। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि इमरान खान के कद के आदमी को क्या ऐसा करना चाहिए था? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि एक सियासी जमात को कानून और आइन की हुक्मरानी पर यकीन रखना चाहिए। तहरीरी जवाब से मुझे ज़ाती तौर पर दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि मातहत अदलिया जिन हालात में काम कर रही है वो सबके सामने है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इमरान खान के वकील से कहा कि आपको जो भी तहरीरी जवाब देना है सोच समझ कर दें। आपको इस मामले की संगीनी का भी अंदाज़ा होना चाहिए।
जस्टिस मियां गुल हसन ने वकील सफाई को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आज खत्म हो सकती थी, मगर आपका जवाब तसल्ली बख्श न होने के सबब ऐसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अदालत सारी कार्रवाई को शफाफ अंदाज में आगे बढ़ाएगी। मामले की संगीनी को समझते हुए सोच समझ कर जवाब दें। केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक और मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहना है कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पूरी कौम हिस्सा ले रही है, ये वक्त मनफी सोच का नहीं है। बिल्कुल सही बात जी, की है, बिल्कुल ऐसा ही है। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की राह में रोड़े अटकाने की बजाय ताउन करे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ीक और मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पूरी कौम हिस्सा ले रही है, ये वक्त मनफी सियासत का नहीं है। तफसील बता रहे हैं मलिक उमर। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि क़यामत खेज सैलाब ने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली की वजह से पहले ही शदीद माशी बहरान का शिकार था। सैलाब की वजह से मजीद माशी दबाव बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि पूरी कौम इस वक्त हुकूमत का साथ दे। हमने वज़ीर आज़म हाउस में फ्लड रिलीफ कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें तमाम वज़राए आला को मदऊ किया गया था 2 रोज़ पहले। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि वज़राए आला को रोका गया और वो उस फ्लड रिलीफ कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने। सिंध के वज़ीर आला आए, बलोचिस्तान के वज़ीर आला आए, लेकिन पंजाब, KP और गिलगित बिल्तिस्तान के वज़राए आला ने शिरकत नहीं की, जूम पर भी शिरकत नहीं की। और आज आज़ाद कश्मीर के PM को भी रोका गया, वो भी तशरीफ़ नहीं लाए। जंगल में आग लग जाए ना तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं। जो दूसरों को जानवर कहते हैं वो अपने बारे में सोचे कि वो क्या है। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने कहा कि पाकिस्तान को नुकसान से बचाने के लिए हमने अपनी सियासत को दांव पे लगाया। ये वक्त सियासी लड़ाई का नहीं, आवाम की मदद का है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बैरून मुल्क से मिलने वाली इमदाद में हेरा फेरी की जा रही है। शौकत तरीन साहब की और बाकी दोनों वज़रा की गुफ्तगू लीक होने से पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम IMF की शराइत नहीं मानेंगे और हम हुकूमत से तावन नहीं करेंगे। उसके बाद शौकत तरीन साहब ने और वज़राए ख़जाना ने गुफ्तगू फरमाई है, और कल उनकी एक MNA साहिबा ने BBC रेडियो पर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आलमी इमदाद के अंदर हेरा फेरी हो रही है, इसलिए आलमी इमदाद नहीं मिलनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। क्या करें? हम गद्दारियों के सर्टिफिकेट तो नहीं बांटते, लेकिन करें क्या नाम दें इसको? मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कमर ज़मान कायरा ने कहा कि मुल्क की तारीख में कभी इस कदर बारिश नहीं हुई। पानी उतरने के बाद ही नुकसान का असल तखमीना लगाया जा सकता है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बहाली का काम मुकम्मल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मलिक उमर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। सुबह सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होने, और सुबह सिंध और सुबह बलोचिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। इससे कहाँ कहाँ कैसे कैसे नुकसान हुआ है, कोशिश की जा रही है कि वो लोगों के सामने भी लाया जाए, सबके सामने रखा जाए। पहुँच भी रहे हैं लोग, वहाँ पर मदद भी की जा रही है। अब बदीन में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, ज़िशान अहमद ख़ान। इनसे बात करते हैं कि बदीन शहर में कितना नुकसान हुआ है और अब रेस्क्यू और रिलीफ की एक्टिविटीज़ किस तरह से जारी हैं। ज़िशान, ज़रा शेयर कीजिएगा, आप बदीन में मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं वहाँ पर कि तो नुकसान का मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरा ये कि अब रेस्क्यू और रिलीफ की एक्टिविटीज़ कहाँ तक पहुँची हैं? जी, जिस तरह के बताया जा रहा है कि जिस तरह से तमाम अजला तकरीबन सिंध के 22 अजला अफजदा करा दिए गए हैं, उनमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। और यही इस तरह देखा जा रहा है बदीन और बदीन से ताल्लुक रखने वाले पंगरियो शहर हो गया या जडो शहर हो गया, वो पूरी तरह गाँव देहात ज़ेर-आब आ ही चुके हैं। इसके अलावा शहरों में भी पानी आ चुका है, जबकि एक लेफ्ट बैंक आउटफल ड्रेन जो है LBOD जिसका नाम दिया था, जो कि इसका ताल्लुक ही सैलाब से था, सैलाब के पानी के निकास से था, वो भी इस वक्त जो है 18 से 20 हज़ार क्यूसेक पानी का फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से ओवरफ्लो होने की वजह से जो करीब के ज्वार के जो शहर और इलाके हैं, जैसे रोशनाबाद और हयात खासखेली की जो गाँव शहर है, वो भी इस वक्त पानी के में डूब चुके हैं पूरे। इस वक्त जो है ना, अगर मैं बता दूं कि आपको इस वक्त जो सैलाबी रेला जो इस वक्त गुजर रहा है, उसमें काफ़ी शहरों को नुकसान पहुंचा है। इस वक्त जितने भी पुल या ब्रिजेस थे
وہ ٹوٹ چکے ہیں. اس کے علاوہ 200 فٹ کے 2 شگاف بھی پڑ چکے ہیں ایک بند پہ، جس کی وجہ سے جو آگے کا جو آبادی ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے. جبکہ وزیر اعظم مراد علی شاہ نے جو ہے پہلے ہی لوگوں کو ریسکیو کے لیے امداد کر دیا تھا. اس کے علاوہ جتنے بھی انتظامیہ نے وہاں پر انتظام کر کے 3000 خاندانوں کو وہاں سے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا. اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ہے لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ امدادی کیمپ جاری ہیں، اور بدی کے جو ساحلی علاقہ ہے احمد راجو، وہاں پہ پاک آرمی کی جانب سے ہی بارش متاثرین کے لیے امدادی کیمپ اور طبی کیمپ بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں پہ جو ہے لوگ جو ہیں وہاں پہ بارش متاثرین کی جو ہے وہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہیں. وہاں پہ راشن، خیمے، مچھردانیاں اور دیگر سامان بھی تقسیم کیا گیا ہے. جبکہ طبی کیمپ میں مختلف بیماریوں سے وبا پھیلنے کا بھی خطرہ ہے، تو ان بیماریوں سے علاج کے لیے بھی ان کا علاج کیا جا رہا ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، کوشش بہرحال یہی کی جا رہی ہے کہ ہر جگہ پر پہنچا جائے، لوگوں کے درمیان موجود رہا جائے، ان کا حوصلہ بندھایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو عملی خدمت ہے، عملی کام ہے، وہ بھی کیا جائے. جیسے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا بھی تھا کہ ہم خدمت صرف باتوں کی خدمت نہیں کرتے ہیں، ہم باقاعدہ عملی خدمت پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں، ہماری کوشش یہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس نقصان سے باہر نکلا جائے اور بحالی کا عمل شروع کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے زبان، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے تمام مشکلات آسان کرے اور ہم اس مشکل وقت کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں اور لوگوں کی مدد کر سکیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. نیوز شو 6 سے فی الوقت اتنا ہی. کچھ ہی دیر میں علاقائی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ ساتھ رہے، آپ کا شکریہ.